Thank you so much, Rajiv ji. I think we should devote more time to Dr. Dawood's profile and introduction. इतना लंबा, इतना impressive profile है. And believe me, if I sit to read everything, I will be sitting here till evening. Okay. But anyway, Dr. Dawood, Dr. Farooq Dawood, first of all, most welcome, and we are so glad to have you over. In fact, we are privileged to have you over. And in fact, I thank everybody else also. I'm sorry. Sorry. Is somebody else speaking? May I carry on? Yeah, Hello. please. Yeah. And I thank everybody else who have joined in very, very enthusiastically. And believe me, your enthusiasm is fully justified once you start listening to Dr. Dawood Farooq. And to start off with his introduction, Dr. Dawood Farooq is a director of the Center for Evidence-Based Policy, Practice and Interventions. He is an Oxford University alumnus with a degree in evidence-based policy. He's an executive director of an Oxford-based research think tank named Oxford Evidence and Interventions in the United Kingdom. He has done a lot of work in United Kingdom also. His work is focused on evidence-based approach that empowers research and policy making and guidance of practices and interventions. He has made an exemplary contribution to the Indian society by transporting the methods of policy synthesis and calibration of interventional practices to the country. For this purpose, he has established the foundation for evidence-based development in India, friends, which is promoting evidence-based methods in the country. And the foundation runs a research center also. Friends, before joining Oxford, Dr. Farooq obtained a PhD in psychology and taught the subject at the Aligarh University, Muslim University, for 5 years. Friends, I cannot keep on carry on. His profile is so lengthy, so much, but I must say that Dr. Farooq has worked with renowned academicians and policy experts, such as Professor Paul Montgomery, Professor Francis Gardner, Dr. Kenneth MacDonald, and Dr. Phil Davis, and Professor Hamida Ahmed. Doctor, we are really privileged to have you. And I'm sure some of the terms mentioned here are new to us, and we are waiting to understand them from you. I'm sure by enlightening us about them, you will be doing a great, great service and great favor to all of us, because it's a subject that we need to know. If it is doing so much for mankind, I'm sure we need to know what is it all about. I hope everybody agrees with that. At least I very humbly accept my ignorance on it. Thank you very much. And thank you all of you for being here. Please, Dr. Dawood, please tell us about what you have to say. We are all here to listen. And I bless everybody with this knowledge. Thank you very much. Please, Dr. Dawood, on to you. Thank you very much. Very good afternoon. At the very outset, I would like to say with profound humility that this particular session has become the most unique and session which has given me extra privilege, in the sense that I have been introduced thrice, maybe due to technical reasons, maybe due to the enthusiasm of the family, and maybe due to the open-heartedness of such lovely people with whom I am talking today. But this has never happened before with me, particularly that I was introduced thrice. So I am feeling
joyous, I'm feeling more honored, and in multitudes particularly, and I'm feeling particularly privileged being with you people. And this is my special opportunity to share my ideas, to share whatever I know about evidence-based policy with you people. Thank you very much having me here, particularly Ashok ji, Priyanka ji, Rajiv ji, Meena ji. Thank you so much for introducing me in such a eloquent way. So I am Daud coming bhai, directly to just one request. Daud bhai, before you continue, आपकी conviction level of presentation हिंदी में अगर बेहतर है तो हिंदी प्रयोग करें, अगर आपकी इंग्लिश में है तो इंग्लिश प्रयोग करें. It's not about behtar, Rajiv ji. It's about what is more comfortable and That's what I is said. what is उनकी what is conviction, what is conviction more, of expression. yeah, what is more expressive for him, That's exactly what I have said. what explains better. Basically, it should not focus on my skills to communicate. It should be focused on the objective of this talk. Like Yes, yeah. if I am able to communicate to you guys the concepts in English, and if you feel that the things are not being clear, I can switch to Hindi also. So whatever you people prefer. Dr. Daud, generally people who have had education in English, technical things are better explained in English, because in Hindi to look for technical terms for those things becomes another issue. So it's up to you, whatever is more expressive, whatever language completes the explanation, you may use that. Thank you. All right. So, okay. Thank you for leaving it upon me. So I will try to mix the approach, and I will break into Hindi whenever it is useful. तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, एक क्वेश्चन से. I have used the term evidence-based policy. अब बेसिकली ये टर्म ऐसे ही चलेगा बिकॉज हमारे पास इसके लिए हिंदी में कोई एस्टैब्लिश्ड ट्रांसलेशन नहीं है. बेसिकली एविडेंस जो वर्ड है, इट इज यूज्ड इन लीगल एविडेंस एज वेल. कोर्ट में जो हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं वो भी एविडेंस कहलाते हैं. लेकिन यहाँ पर पॉलिसी में जो तथ्यों की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है, these evidences are coming from research, the outcome of research. तो हमें पहली बात तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियर करनी होगी बिकॉज I started studying evidence-based policy in the year 2008. उससे पहले मैं दूसरे डिसिप्लिन में था, साइकोलॉजी में. Then I took a switch from psychology to evidence-based policy, and I joined Oxford University as a student. उस वक्त मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया था, बहुत से लोगों से, बहुत से एक्सपर्ट से बात करके फैसला लिया. स्टिल मेरे जहन में जब मैं इसकी पढ़ाई कर रहा था और मैंने जॉब भी शुरू कर दी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में यूके में, इस समय भी मैं पूरी तरह से इस चीज को आत्मसात नहीं कर पाया था कि एविडेंस सही मायनों में क्या है. और मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम एविडेंस की बात करें तो अपने मन को, अपने जहन को, अपने माइंड को जरा खोल कर रखिएगा, क्योंकि इसमें एविडेंस को लेकर नए डेवलपमेंट्स होते चले जा रहे हैं और उसका कंसेप्ट जो है वो दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहा है. ये इवॉल्विंग टाइप का नेचर है इसमें. जी. तो पहली बात तो ये है कि एविडेंस है क्या. यहाँ पर साइंस में जब कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है
तो बेसिकली साइंस का के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे पार्सिमनी है कि योर स्टडी शुड बी इकोनॉमिक एंड शुड बी फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स इन इकोनॉमिक पेरिफेरी। Hmm. उसी के साथ आपके पास ये भी होता है कि यू हैव टू carry out experiments in laboratory, or if you are doing an experiment in social setup, then you have to replicate laboratory conditions in the society. Like you have to control the variables. तो वो भी एक बेसिक assumption है साइंस का। इसी तरह से साइंस में किसी भी रिजल्ट को एक बार में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसको बार बार किया जाता है। और जब बार बार एक सा रिजल्ट आए तो हम उसको कहते हैं कि ये एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज है। तो ऑब्जेक्टिविटी भी साइंस का एक बेसिक अजम्पशन होता है। और एक और एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि एक जगह एक कॉन्टेक्स्ट में जब साइंस के एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट आता है और वैसा ही रिजल्ट दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी आता है, अगर हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल कर दिया तो वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर आता है तो भी ये एक साइंटिफिक अजम्पशन है ऑब्जेक्ट रेप्लिकेबिलिटी। Okay. तो जब हमारी कोई भी रिसर्च की जाए और वो रिसर्च वो डेटा यानी वो आउटकम या वो रिजल्ट्स जो हैं वो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिविटी और रेप्लिकेबिलिटी में पास हो जाते हैं, तब हम ये मानते हैं कि इनमें इनके कारकों में यानी इनके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें और जो आउटकम है जो रिजल्ट है उनके बीच में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो साइंटिफिक डिस्कवरी का एक हॉलमार्क है। Hmm. तो जब जब ऐसे रिजल्ट आते हैं तो हम उस डेटा को एविडेंस कहते हैं। यानी मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा। हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसको हीट देते हैं। हीट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और बॉइलिंग जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी जब हम पानी को गर्म करते हैं तो बॉइलिंग शुरू हो जाती है। कब होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचने पर होती है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आज मैं अलीगढ़ में बैठा हूं, मैंने अगर पानी को गर्म किया तो वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बॉयल हो गया, और दिल्ली में किसी ने बॉयल किया तो वो 110 डिग्री पे बॉयल हो गया, या किसी ने सुबह के समय बॉयल किया तो 100 डिग्री पे हुआ और शाम को बॉयल किया तो वो 50 पे हो गया। ये वेरिएबिलिटी नहीं होती, हमेशा एक सा ही काम होता है। साइंटिफिक डिस्कवरी है तो हमारे पास ये एविडेंस है। ये बात एविडेंस कहलाएगी कि जब भी पानी को 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया जाता है वो बॉइलिंग शुरू कर देता है। ये जानकारी एविडेंस है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा डेटा कलेक्ट किया जिसमें हम ये कहें कि किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश के नॉर्दर्न क्षेत्रों में 50% वोट मिल रहे हैं, और उसी सर्वे को हमने दूसरे क्षेत्र में किया और वहां पर उन्होंने बताया कि उसी पार्टी को 75% वोट मिल रहे हैं। डेटा यहाँ भी कलेक्ट हुआ है लेकिन ये एविडेंस नहीं है। Okay. लेकिन ये डेटा एविडेंस बन सकता है। अभी बात यहाँ पे आ रही है कि अब सोशल सेटअप में हम जहाँ पे पॉलिसी का क्वेश्चंस होते हैं वहां पे ये डेटा एविडेंस बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर हम इस तरह के रिसर्च को बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, बहुत ही प्रूवन मॉडल के साथ, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, उनके सेटअप में जब इनको हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये डेटा एक रिजल्ट देता है, फिर हम उसी उसी तरह के काम को, उसी तरह की रिसर्च को दूसरे लोकेशन में करते हैं, वहां भी इसी जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, बार बार एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, और हर बार जो रिसर्च की गई है उसके प्रोटोकॉल्स जो है वो स्ट्रांगली फॉलो हो रहे हैं, साइंटिफिकली फॉलो हो रहे हैं, तब हम उसको कह सकते हैं कि ये एविडेंस है। यानी सोशल रिसर्च भी एविडेंस दे सकती है, लेकिन उसको
उस डेटा को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारे परीक्षणों से Right. गुजरना पड़ा। तो अब मुझे लगता है कि मैंने एविडेंस क्लियर कर दिया कि क्या होता है। जी। तो अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ एविडेंस बेस्ड पॉलिसी पर। करीब 40-45 साल पहले डॉक्टर्स ने इसकी शुरुआत की, एविडेंस बेस्ड अप्रोच की। और उसमें सर्जन थे, ब्रिटेन में कुछ सर्जन्स थे, उन्होंने जब भी सर्जरीज की किसी भी सर्टेन एरिया में, तो उस सर्जरी को उन्होंने दोबारा से वैसे ही रिजल्ट पाने के लिए ये किया कि हर बार सर्जरी से रिलेटेड डेटा वो कलेक्ट किया करते। और उस भाई, जब भी किसी तरह की कोई सर्जरी पार्टिकुलरली मेडिकल कॉलेजेस में होती है या कोई भी ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें उसमें पेशेंट का डेटा लिया जाता है। लाइक सीबीसी कर लिया तो उसमें ब्लड के प्लेटलेट्स हैं, अलग ब्लड के पैरामीटर्स हैं, और उसमें लीवर के पैरामीटर्स हैं, उसमें और दूसरी लिपिड प्रोफाइल्स हैं। ये सारे डेटा है। इन सारे बॉडी पैरामीटर्स को पर्सपेक्टिव में रखते हुए सर्जरी के आउटकम्स को देखा जाता था, और फिर उन्होंने अपने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए और अपनी आगे आने वाली प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करते थे। और वो डेटा जो जनरेट करते थे, वो उसको वो एविडेंस कहते थे। और एविडेंस तब कहते थे जब वो बार बार एक पर्टिकुलर डेटा को जस्टिफाई कर लेते थे कि ये एक जैसा रिजल्ट आ रहा। और इस तरह से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जन्म हुआ, और इसको धीरे धीरे मेडिकल कम्युनिटी में काफी पॉपुलैरिटी मिली, और इससे मेडिकल और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होने लगी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगे। डॉक्टर्स को भरोसेमंद ट्रीटमेंट देने में इससे काफी मदद मिली। फिर कुछ इंथुजियास्टिक रिसर्चर्स थे, उन्होंने इस टेक्निक को, इस मेथड को दूसरे डिसिप्लिन में ले जाने की कोशिश की, और वहां भी उनको कामयाबी मिली, क्योंकि ज़ाहिर है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारे यूनिवर्स के हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई होते हैं और एक जैसे अप्लाई होते हैं। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए एविडेंस जनरेट किया जाता था, उससे फर्दर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करते थे, और फिर फर्दर एविडेंस जनरेट किया जाता था। तो इट वाज ए चेन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस while improving your practices and their outcomes honestly. तो उस समय के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को इसके बारे में पता चला। He was a very clever man and he was thinking like he was being socially responsible. तो उन्होंने सोचा क्यों ना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाया जाए। उन्होंने अराउंड द कंट्री तकरीबन 200 थिंक टैंक्स स्टैब्लिश किए, जो अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं, यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। और उन्होंने वेहेमेंटली पुश किया कि गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाई जाए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाए उनको एविडेंस से बैकअप दिया जाए। इस तरह से हम, क्योंकि उससे पहले एक परेशानी थी, हमारे यहाँ भी वो परेशानी है और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में भी वो परेशानी है कि एविडेंस, सॉरी, जो हम साइंस को प्रमोट करते हैं, हमारे पास डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रमोशन ऑफ साइंस के मैसिव प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैसिव फंडिंग्स होती हैं। हम यूजीसी के थ्रू, दूसरे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंस्टीट्यूशंस को, साइंटिस्ट को फंड्स देते हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्चेस करें। उसका मकसद क्या है? क्योंकि साइंस इज सोशल एंडेवर। साइंस में जो कुछ भी किया जाता है वो पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हमेशा फिक्रमंद रहते थे, परेशान रहते थे कि साइंस की रिसर्च हो रही है, उसमें बहुत सारी फंडिंग भी यूज हो रही है, लेकिन जब
एकेडमिशियंस और साइंटिस्ट अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर देते हैं, अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर देते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल पॉलिसी में कैसे किया जाए, इस बारे में हमेशा कंफ्यूजन बना है। फिर होता क्या है, दो पैरेलल वर्ड हो रहे हैं, यानी कि साइंटिफिक वर्क और पॉलिसी मेकिंग के बीच में कोई एक लिंक नहीं है, कोई ब्रिज नहीं। जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात आती है तो जाहिर है पॉलिसी मेकिंग जो है वो अक्सर टाइम प्रेस्ड होती है, उसको सही वक्त पे डिवाइस करके, फॉर्मुलेट करके और इम्प्लीमेंट करना होता है। जो प्रोग्राम्स तय किए जाते हैं, पॉलिसी के प्रोग्राम्स, उनको रोल आउट करना, फिर उनका इम्पैक्ट रिकॉर्ड करना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है और वो अपने तौर पर बहुत अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन उनका ये एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहा और आज भी है कि जब साइंस में इतना इन्वेस्ट किया जा रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरी में इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और वो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं रिपोर्ट की फॉर्म में, वो पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं हो पाते? परेशानी क्या है? परेशानी ये होती है कि ये पॉलिसी मेकर्स की दुनिया अलग है और एकेडमिशियंस की लैंग्वेज अलग है। हम जो कुछ भी पब्लिश्ड मटेरियल देखते हैं उसको उसको कौन से पैरामीटर्स के जरिए और कौन से इंक्लूजन क्राइटेरिया की मदद से पॉलिसी के इनपुट्स में लाया जाए सही तरह से, वो नहीं हो पाता। होता है अगर, तो हम क्या करते हैं कि एक या दो चोजन स्टडीज को जिन पर हमारी निगाह होती है उनको लेते हैं और उनसे जो भी फाइंडिंग्स आती हैं जो कि एक सर्टेन पॉपुलेशन की होती हैं, उनको हम अक्सर पूरे देश में अप्लाई करते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, जरा आप इमेजिन करें कि एक स्टडी की गई कि मान लीजिए एक बच्चों में एक प्रॉब्लम होती है जिसको जैपनीज इंसेफेलाइटिस कहते हैं, दिमागी बुखार। अक्सर बारिश के दिनों में ये बीमारी होती है, उससे बहुत सारे बच्चों की जान चली जाती है। तो अगर हम मान लीजिए बिहार में या उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न रीजन में इसकी स्टडी करते हैं और ये Hmm. पाते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर मेडिसिन या पार्टिकुलर वैक्सीन काम करेगी, ये हमारे पास प्राइमरी स्टडी होती है, यानी कि डेटा बेस्ड स्टडी होती है जिसमें हम फील्ड पर जाकर स्टडी करते हैं और उसके रिजल्ट्स को अगर हम नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दें तो इसका मतलब यही होगा कि जो ईस्टर्न यूपी या बिहार की पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं उसके आधार पर हमने पूरे देश के लिए डिसीजन ले लिया। तो ऑनेस्ट साइंटिफिक इनकॉर्पोरेशन होते हुए भी हमारी जो पॉलिसी है वो फुल प्रूफ और एफिशिएंट नहीं बन पाती। इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको, और वो यूं होती हैं क्योंकि साइंस और पॉलिसी के बीच में कोई ब्रिज नहीं हो पाता। तो वेस्ट में मैंने जब पढ़ाई की वहां पर जाकर, तो मैंने वेस्ट में जो डेवलपमेंट को ऑब्जर्व किया, तो Hmm. मैंने अंदाजा लगाया कि डेवलप्ड हैं क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे भरोसा करते। अच्छा, केवल ये नहीं है कि उन्होंने एक बार एक डिसीजन लिया और वो मरते दम तक उनके काम आएगा। उनको वो डेवलप्ड की कैटेगरी में हैं, वो तो ठीक है, आ गए, लेकिन वो उन्हें डेवलप्ड की कैटेगरी में बने रहने के लिए भी ढेरों इन्वेस्टमेंट करना होता है, ढेरों एफर्ट्स करनी होती है। यानी एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो है वो लगातार उनकी अपडेट होती रहती है। जो एक बार डिसीजन ले लिया गया उसी डिसीजन को फिर से 10 साल बाद रिफाइन किया जाता है और जो भी सोसाइटल चेंजेस हैं, जो भी इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं, जो भी बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, उनकी वजह से अगर पैरामीटर्स में चेंजेस आए हैं तो पॉलिसी को भी उसी इस लिहाज से अपडेट किया जाता है। तो डेवलप्ड की कैटेगरी पाना और फिर उसको पकड़े रहना,
उसमें जो है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान है। यह यूं कह लीजिए कि देखिए, जब मैंने वहाँ काम किया तो मुझे अक्सर मौका दिया गया कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो, जिसको हम दर्शक दीर्घा बोलते हैं, विजिटर्स गैलरी, उसमें बैठकर और जो पार्टिकुलर बिल्स होते हैं जिन पर बहस हो रही है उनकी रिपोर्टिंग करना, उनको सुनना, और ये देखना कि अगर हमने कोई पॉलिसी बनाई थी, हमारे ग्रुप ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसको वहाँ डिस्कस किया जा रहा है, तो उस पर देखना कि पार्लियामेंटेरियंस हैं, कॉमन्स हैं, लॉर्ड्स हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है। और बेसिकली वो पॉलिसी साइंटिफिक इनक्लोजर से निकलकर पब्लिक पोर्टल में पहुंची है जब पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है। तो वहां पर उसका रिसेप्शन कैसा है, उसका टेकअप कैसा है, और उसके लिए फीडबैक क्या है, ये सब जानकारी लेना भी हमारा हिस्सा था। तो उसमें मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि जब भी कोई पॉलिसी या प्रोग्राम, वो लोग, कोई मिनिस्टर या कोई रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेट अपनी इंट्यूशन पर, अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे या अपनी थ्योरी पर बनाकर लाते थे, तो उसको काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना होता था, उसमें काफी खींचतान होती थी। लेकिन जब कोई भी पॉलिसी एविडेंस के आधार पर बनाकर ले जाते थे, तो मेरे सामने जितने भी बिल डिस्कस हुए हैं उनमें से ज्यादातर जो भी एविडेंस बेस्ड बिल हुआ करते थे वो तुरंत पास हो जाते। अच्छा, अब जब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी में जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो कुछ अलग अलग तरह के हैं, जिसमें जिसमें लेवल ऑफ स्ट्रेंथ जो है एविडेंस का, वो भी कैटेगराइज किया जाता है। एक रिसर्च है जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक रिव्यू। ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच में द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस के नाम से जाना जाता है। कोई भी पॉलिसी पार्लियामेंट में जब रोल आउट की जाती थी और ये बोला जाता था कि इसको एविडेंस बेस्ड के, सॉरी, इसको सिस्टमेटिक रिव्यू के आधार पर तैयार किया गया है, तो वो पॉलिसी तुरंत, देखिए वहां मैंने एक चीज देखी है कि जो विपक्ष है वो बहुत स्ट्रांग है और विपक्ष की आवाज भी बड़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन विपक्ष भी जब ये सुनता था, अपोजिशन भी जब ये सुनता था कि ये पॉलिसी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी है और वो भी सिस्टमेटिक रिव्यू के आधार पर है, तो वो ज्यादा बहस नहीं करते और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था आसानी से। क्योंकि वहां पर गवर्नेंस का एक तरीका ये भी था कि बहुत अच्छा तरीका है कि वो एक शेडो गवर्नमेंट रन करते हैं। आप सब जानते होंगे, एक्चुअली जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है इंडिया में, वो भी ब्रिटिश टाइम से ही इम्बाइब लिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शेडो गवर्नमेंट का एस्पेक्ट है, इसको हमने इसका हमने फायदा नहीं उठाया। वहां पर जो ब्रिटेन में जो शेडो गवर्नमेंट है, उसमें विपक्ष में जो नेता विरोधी दल होता है, अपोजिशन का लीडर, उसको उसको शेडो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। इसी तरह से हेल्थ मिनिस्टर के साथ शेडो हेल्थ मिनिस्टर होता है, सारी मिनिस्ट्रीज का शेडो मिनिस्टर होता है। और इनका काम यही होता है कि वो पार्ट 1 to 1 क्वेश्चंस भेजते हैं मिनिस्ट्री को और उनकी एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। और इससे एक्चुअली गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलकर कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, और इससे जो है फूल प्रूफ पॉलिसीज भी जनरेट होती हैं। और इस सब में जो टूल यूज होता है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होती है। इसी की मदद से जहां भी उनको डिसीजन में कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच का सहारा लेते हैं। वो एक रिसर्च कमीशन करते हैं और उसके रिजल्ट आने तक वेट करते हैं। जैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए हम कोई अपने यहाँ पॉलिसी बना रहे हैं, एक पार्टिकुलर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए अगर हम कोई एक
स्पेशल बेनिफिट कार्ड डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई मिनिस्टर या कोई ब्यूरोक्रेट बड़ी मुश्किल से ये सोचेगा कि लाओ इसके बारे में एक रिसर्च की जाए। देयर विल बी डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्टली। लेकिन अगर कोई ये प्रपोज करे कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इंटरवेंशन। I हेलो, Hello. यस, Yes. somebody was saying, कौन interrupt कर रहे हैं? I think Excuse me, I think everybody, if you have any question or query or suggestion, please jot it down and we'll give you time at the end of the session to ask it. Okay? that Thank would be you, very much helpful. everybody. Yes, yes. Sorry for this interruption. Sorry. That is all right. I am afraid I am going off the track, but I'm trying to stay और मुझे आप बता दीजिएगा if not being on track कौन है? या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो please interrupt me. Maybe they should mute their mics. अली So भाई shall I अपना carry on? म्यूट कर लो। राजीव जी, अली भाई अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ जी, कैरी ऑन जी। जी, thank you. So this is a brief, like this is just an introduction to evidence based approach. अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था या वहाँ काम करता रहा, मुझे हमेशा ये लगा कि इसकी ज़रूरत इंडिया में है। और क्योंकि साइंस पर वर्क हर जगह हो रहा है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हर कंट्री में हो रही है, साइंस में इन्वेस्टमेंट हर जगह हो रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही हो पाए तभी उसको करने का बेनिफिट है। अदरवाइज जो रिपोर्ट्स हैं, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, वो ड्रॉअर का हिस्सा बन जाती हैं, अलमीरा में अच्छी तरह रख दी जाती हैं, और या फिर पब्लिकेशन हो जाता है। मैक्सिमम ये होता है कि अगर वो एकेडमिशियन है, साइंटिस्ट हैं, तो उनको क्रेडिट्स या API स्कोर मिल जाते हैं, दैट्स इट। तो इसमें कई सारी बातें हैं उसमें, लेकिन जब मैंने उसमें फर्दर स्टडी की, थोड़ी जानकारी की कोशिश की, तो पता ये चला कि पहली बात तो ये कि मैंने 2012 में जब अपना काइंड ऑफ एक्सपेडिशन शुरू किया इंडिया में, तो मैं यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेसी से मिला। जैसे चीफ सेक्रेटरीज थे अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट के, उनसे मिला, मैंने बात की। और मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्रजापति त्रिपाठी, उनसे भी मैंने डिस्कशन किया इस बारे में। मुझे ये पता चला कि ब्यूरोक्रेसी में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी की नॉलेज काफ़ी एडवांस्ड है, उसकी स्ट्रेंथ को समझना उन्होंने समझ रखा है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी है, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं। जैसे एक चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि देखिए, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि नंबर वन, देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप, पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी इंटरडिपेंडेंट है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी हावी है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो हैं उनको पॉलिसी की इतनी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और उनको ब्यूरोक्रेट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत पुराना इतिहास है। जब IAS से पहले ICS हुआ करती थी, उससे पहले का इतिहास है बना, और उनके जमी जमाई प्रैक्टिसेस, उनके बने बनाए तरीके, और उन तरीकों में उनकी जो कंटेंट ऑफ अथॉरिटी है वो बहुत ज्यादा है और बहुत स्ट्रांग है। एविडेंस बेस्ड अप्रोच जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो डिसीजन का बहुत बड़ा फैक्टर या बहुत बड़ी अकाउंट जो है वो ब्यूरोक्रेट के हाथ से निकलकर साइंस के हाथ में चला जाता है, और आप जो है वो अपने मन की ना करके साइंस के मन की करना पड़ती है। यानी जो साइंस ने बोला वो करना है आपको।
तो इससे जो है वो काम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जो कि पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन। देयर इज सम राजीव जी, could you please mute your mic? राजीव जी म्यूट करें अपने आप को, डिस्टर्बेंस आ रही है आपके यहाँ से। हमेशा यही होता है। That's true, मैं भी कॉल करता हूँ, ये आदत से मजबूर हैं। नहीं आज मैं चलिए, हाँ कर लिया जी। गुड सर। Okay, so shall I carry on? थोड़ा सा रेस्ट मिल गया और फोन लो, फोन बच्चा को देगा तो उसको अली भाई आप भी बंद करो अपना, म्यूट करो अपना। अली कोई भाई डेंजर हो गया, कुछ हो गया। अली भाई ज्यादा आदत से मजबूर है। अली भाई आप भी मैंने म्यूट बोल करो दिया अपने भैया आप को, को। भैया कर देगा इंतजाम चक्का का, ठीक है। हाँ, ऐसा कोई नहीं है, दीदी आज आंटी आ जाएगा, उनका पापा का थोड़ा तबियत खराब अरे है अली शहनशाह भाई, और अली शहनशाह इसलिए भाई, वो किसी को सारी बताता आपकी नहीं है गुफ्तगू वो। सुनाई दे रही है। किसी का तकलीफ है क्यों किसी को बताए। हाँ, अरे भाई अली जिसको शहनशाह तकलीफ, जी, हाँ जिसको तकलीफ हो उसकी तकलीफ, यार और सुनाई तुमको लगा। तकलीफ नहीं देना चाहता है। Could someone call him separately? मैंने तुमको बोल दिया प्लीज राजीव जी उनको फोन कीजिए, यहाँ पर मत बुलाइए ऐसे बार बार। आप उनको फोन कीजिए और डायरेक्टली बोलिए उनको। मैं बोलता है, मैं बोलता है, आज बोल दिया है वो कर देगा, कहीं ना कहीं से कर देगा वो, ठीक है। अभी मेरा पैसा भी नहीं आया है ना। एनीवे नहीं, प्लीज दाऊद जी प्लीज कैरी ऑन। वाला तो मेरा पैसा अली आया नहीं। नहीं Wha- नहीं, अशोक जी आप भी शांत रहिए। या Okay, हम किसी का so नहीं पैसा पूरा मिल जाए, वो बनना नहीं चाहिए। I'm not able to speak in this. Could you please somebody call him and mute his mic? मेरे पास उनका नंबर नहीं है I think Mr. Rajiv. मिस्टर, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। राजीव जी प्लीज कॉल हिम अप एंड आस्क हिम टू स्विच ऑफ हिज माइक, टू म्यूट हिमसेल्फ। या तो आप करिए ना, एडमिन कौन है अभी, होस्ट कौन है? हेलो, नहीं तो अली बख्शी अशोक बख्शी जी को होस्ट बना दीजिए, ही विल म्यूट इट। मेरे ख्याल से कर दिया है। सॉरी Right, okay. दाऊद जी। हाँ जी। No, not at all. It happens sometimes. Anyways, so I'm coming back to the issues of like bridging policy and science. तो जो चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ पे एक स्टेट के, उन्होंने मुझे बताया कि हम ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपना ट्रेडिशन नहीं तोड़ना चाहेंगे, और हमें बताया जाता है कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एक मेथड है और इससे हमारे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है, ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाती है। लेकिन उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई। पहली बात तो ये है कि लॉस ऑफ अथॉरिटी है इसमें। दूसरी बात ये है कि ये जो एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ये बहुत ही ज़्यादा रिगरस है, मेहनत मेहनत तलब है, और एक एक डिसीजन के लिए और उसकी एक्यूरेसी के लिए हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो एक जिस काम में हमारी ट्रेनिंग है उसको छोड़कर एक नए काम को सीखें और उसके बाद उसमें हम और वो भी डिसीजन मेकिंग के लिए, फिर दैट गिव्स यू a sense of being dependent while you are in authority, कि हमें किसी साइंटिफिक प्रोसीजर के रिजल्ट का वेट करना है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ये सोचा कि एक पार्टिकुलर अनरेस्ट की सिचुएशन में लाठीचार्ज किया जाना चाहिए, खत्म हो जाएगा तो चलेंगे बाजार, लेट देर हो रहा। राइट। तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सोचता है कि मुझे एक
एक फैसला लेना है कि एक अनरेस्ट की कंडीशन है, एक अनरेस्ट की सिचुएशन है, और उसमें लाठीचार्ज किया जाना साइंटिफिकली करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए उन्हें जो है एक बाकायदा एक रिसर्च करनी होती है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, इन्वॉल्व करना होता है, और ये सारे प्रोसीजर्स के लिए वो मेंटली तैयार नहीं है, पूरी ब्यूरोक्रेसी। तीसरी उसमें सिचुएशन ये आ जाती है कि इस चूंकि उनकी अपनी एक ट्रेनिंग रिसर्च की नहीं होती है, तो उनको एक्सटर्नल रिसर्चर्स पर डिपेंड करना होता है। उसके अलावा कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि साइंस की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। साइंटिफिक वर्क जो है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के जरिए किया जाता है, या फिर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में वैज्ञानिक हैं उनके जरिए किया जाता है। उनके उनका अपनी रिसर्च को लेकर एक बहुत ही लिमिटेड अप्रोच होती है। अच्छा, उनकी लिमिटेड अप्रोच होना उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा पिन पॉइंटेड और इनग्रॉस नहीं होंगे अपने काम में, तो उनके काम की एक्यूरेसी पे और उसकी गुणवत्ता पे असर पड़ेगा। लेकिन और इसलिए वो अपना काम करते समय, अगर वो लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, तो उस समय उनके उनके मन में एक सोशल कॉन्टेक्स्ट और उसकी वेरिएबिलिटी फिट नहीं होती। इसलिए वो लोग जो हैं वो अपने कोकून में रहकर, अपने कॉन्टेक्स्ट में रहकर ही अपनी साइंटिफिक वर्क को करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग का स्टाइल भी, जब भी कोई एकेडमिशियन एक रिसर्च को रिपोर्ट करता है, तो उसका एक फिक्स्ड स्टाइल है, उसकी एक फिक्स्ड लैंग्वेज है, और उनका काम और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उन्होंने रिसर्च की किसी जर्नल में या किसी बुक में या किसी भी साइंटिफिक मीडिया में उसको पब्लिश कर दिया, एंड दैट्स इट, उनका काम पूरा हो गया। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पॉलिसी मेकर, स्टेक होल्डर, ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन कि वो उस स्टडी को रेफर करें, उस स्टडी को पिकअप करें, और उसके जरिए वो साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग करें। लेकिन वो स्टडी जिस लैंग्वेज में लिखी होती है, वो रिसर्च वर्क जिस लैंग्वेज में रिपोर्ट किया गया होता है, वो ब्यूरोक्रेट्स के या पॉलिसी मेकर के समझ में नहीं आता है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड, दे डू नॉट टेक द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज है और उसकी ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेट्स को नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि स्टडीज पब्लिश हो जाती हैं, लेकिन वो पॉलिसी तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तीसरा बड़ा चैलेंज ये है कि कौन सी रिसर्च जो है वो एविडेंस है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ एकेडमिया में या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में ढेरों रिसर्चेस होती हैं। मैंने एक बार 10 साल पहले सर्वे किया, उसका डेटा जनरेट किया, पता ही चला कि जो ऑनलाइन डेट बेसिस हैं जहाँ पे रिसर्चेस की रिपोजिटरी है, उसमें एक एक दिन में 30,000 पब्लिकेशंस हो रहे हैं, 40,000 पब्लिकेशंस पर डे हो रहे हैं। मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, आज ज्यादा हो रहे होंगे। और उनकी उनकी क्वालिटी बहुत खराब है, उनमें डेटा फ्लॉड है, उनमें डेटा रॉन्ग है, उनमें डेटा फेक है, उनकी क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि उनमें से जो रिसर्चेस डिपेंडेबल हैं, अच्छी रिसर्चेस हैं, क्योंकि खराब रिसर्च की इतनी ज्यादा गिनती है कि हम सही रिसर्च तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये ढूंढ पाना एक ब्यूरोक्रेट के बस का काम नहीं है, और अगर वो ये काम करता भी है तो उसको एक डिसीजन लेने के लिए बरसों लग जाएंगे, एंड दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसीलिए एविडेंस बेस्ड अप्रोच की जरूरत पड़ती है, जो आपको एक लिंक की तरह काम करता है। तो पहली बात तो ये है कि अप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड स्टडीज का तलाश करना,
फिर उसमें से ये कि डेटा में से एविडेंस को एस्टेब्लिश करना, और फिर ये कि एक पॉलिटिकल विलिंगनेस होना, ये सारे ही इश्यूज हैं जो बैरियर्स की तरह काम करते हैं। और किसी पर्टिकुलर सेटअप में, जैसे इंडिया है या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसमें पॉलिसी मेकिंग को लेकर परेशानियां आती हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि लोगों ने कुछ कोशिश की पॉलिसीज को रेप्लिकेट करने की, लेकिन उसके लिए सही से सही से पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के लिए कोई एक नई पॉलिसी डिवाइस करने की कोशिश की। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है ना सही? Could somebody confirm? आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी। Okay, okay, thank you. It was a wonderful silence, so I thought anyways. तो चंद्र बाबू नायडू जी ने ये सोचा कि पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए कोई नया प्रोग्राम लाया जाए, और उन्होंने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडवाइजर से बात की और उनसे कहा कि हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम बताइए जो हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। उस समय मेक्सिको में एक एक प्रोग्राम चल रहा था पॉलिसी रिडक्शन का, जिसका नाम था टोर्टिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। टोर्टिया वहां पर जो है, जैसे हम टोर्टिल्ला भी बोलते हैं क्योंकि उसकी स्पेलिंग टोर्टिला है। टोर्टिया जो है वो एक तरह से चपाती होती है, इंडिया में इसको हम चपाती कह सकते हैं। अंडे का बनता है शायद टोटिया। टोर्टिया जो है वो हाँ जी, मक्का के आटे का बनता है। हाँ हाँ हाँ, चपाती होती है वो। टोटिया। हाँ जी, हाँ, टोटिया। उस जी, और उसको हम लोग टोर्टिला, चूंकि लिखा जाता है तो टोर्टिला भी बोलते हैं, TORTILLA। लेकिन जो ओरिजिनली दे कॉल इट टोर्टिया। तो जैसे हमारे यहाँ रोटी भी बोलते हैं, हमारी रोटी भी बोलते हैं, तो ये कोलोक्वियल मैटर है। तो टोर्टिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, उसको इन्होंने किसी पॉलिसी एडवाइजर ने सजेस्ट किया कि आप जो मैक्सिको का टोर्टिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है वो यहाँ अडॉप्ट करें। और इन्होंने चपाती बांटने का प्रोग्राम, जिसको आंध्रा लैंग्वेज में कुछ था, वो रखा उन्होंने। अब देखिए, पॉलिसी जब भी आप ट्रांसपोर्ट करें तो उसके पैरामीटर्स होते हैं। उसको जब नए लोकेशन में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको 4 पैरामीटर्स पे, यानी इकोनॉमिक, सोशियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल, इन 4 पैरामीटर्स पे उसको जो है वो जस्टिफाई किया जाता है। उसके बाद फिर उसमें जो रिक्वायर्ड ट्वीक्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसकी पहले एक स्मॉल स्केल पे फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। और जब उसको फुल स्केल पे रोल आउट करते हैं तो उसमें इम्पैक्ट एवेल्युएशन के पैरामीटर्स साथ साथ चलते जाते हैं। यानी कि अगर आपको लगे कि पॉलिसी डायरेक्शन रॉन्ग हो गया तो आप उसको रोक सकें या मॉडिफाई कर सकें। ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है। इससे काफी सारा टैक्स पेयर मनी भी बचता है, और आप जो है वो एक बड़े प्रोग्राम के दलदल में फंसने से, गलत गलत और बड़े प्रोग्राम के दलदल में फंसने से बच जाते हैं। लेकिन उस समय जो भी उनके इकोनॉमिक एडवाइजर रहे होंगे नायडू जी के, उन्होंने जो ये प्रोग्राम डिवाइस किया और उसको चलाया, सबसे पहले तो विपक्ष ने उसमें उसको भुनाया। क्योंकि हमारे यहाँ, देखिए, हमारे यहाँ की जो सोशियोलॉजी है और सोशियो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है। तो जैसे ही ये चपाती का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू किया गया, विपक्ष ने उसकी लेबलिंग कर दी कि इन्होंने जनता को भिखारी बना दिया है। उन्होंने लाइन में खड़े होकर, you can devise many arguments which come to your mind, कि किसी ने कहा कि उन्होंने आत्मसम्मान का गिरा दिया है जनता का, उनको लाइन में लगा के भिखारी बनाया है, दिस एंड दैट। और एनीवेज,
कहने का मतलब ये है कि ये पॉलिसी जो थी वो औंधे मुंह गिर पड़ी। हम्म, अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी भी पॉलिसी को अडॉप्ट करने से पहले उसका इम्पैक्ट उसके ओरिजिन पर ही देख लिया जाता है। सच बात तो यह है कि टोटिया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मेक्सिको में ही फेल हो गया था। मेक्सिको में, लेकिन मेक्सिको में फेल होने के कोई सोशल साइकोलॉजिकल रीजंस नहीं थे। विपक्ष ने उसमें कुछ नहीं किया। उसमें उनके जो अफसर थे वो इतने करप्ट थे कि उन्होंने टोटिया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था या जो भी रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल था उसकी खरीदारी में, उसके या उसको डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ज़्यादा करप्शन किया कि वो सारे रिसोर्सेज को उन्होंने रीचैनलाइज कर दिया, उन्होंने उनके चैनल्स को अपनी तरफ मोड़ दिया और वो प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। उसके बाद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने और मैक्सिको के लिए एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी थी उसका, और ये पॉलिसी थी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, और उसका नाम रखा गया था कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम। उनकी लैंग्वेज में जो एक्रोनिम था उसका नाम था प्रोग्रेसा, और इसको एविडेंस पॉलिसी बनाकर एक्सपेरिमेंटल इंटरवेंशन के तौर पे डिप्लॉय किया गया। इसमें उन्होंने बड़ी बड़ी पॉपुलेशन के क्लस्टर्स जो थे वो आइडेंटिफाई किए, और उन क्लस्टर्स में उन्होंने क्रॉस कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट किया। इसमें किया ये गया कि फैमिलीज को डायरेक्ट कैश दिया गया उनकी पॉवर्टी दूर करने के लिए, लेकिन कंडीशंस लगाई गई, इसलिए उसको कंडीशनल कैश ट्रांसफर कहा गया। कंडीशंस ये थी कि कुछ एजुकेशनल पैरामीटर्स थे कि बच्चों की स्कूल अटेंडेंस 80% या जो भी उन्होंने मार्कर रखा था वो होनी चाहिए, बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, बच्चों की और जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके टाइमली वैक्सीनेशन होने चाहिए। इस तरह के उनके 7 या 8 कंडीशंस थी, वो फुलफिल होना जरूरी थी। साथ ही उन्होंने वहाँ के कल्चर को भी स्टडी किया था, उसको अकाउंट फॉर किया। उन्होंने देखा कि पार्टिकुलरली पुअर फैमिलीज में मैक्सिको में men were in a habit of gambling and pathological drinking. वो जो है they would blow up any money, कुछ पैसा भी उनको आप दीजिए वो जुए में और शराब में उसको उड़ा देते। तो ये भी एक क्लॉज रखा गया कि जो कैश ट्रांसफर किया जाएगा फैमिली को वो हाउस लेडी को दिया जाएगा। इट वाज नॉट टू बी गिवन टू द मैन ऑफ द होम। दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब हुआ, इस डिजाइनिंग थी वो बहुत ही एयर टाइट थी, और, और इसका जो रिसर्च का मॉडल था वो बहुत ही फुल प्रूफ था। ये भी अपने आप में एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था। ये पॉलिसी मेक्सिको में बहुत कामयाब हुई, इसी को अर्जेंटीना में, कोलंबिया में और ब्राजील के कुछ हिस्सों में भी इम्प्लीमेंट किया गया। लेटर ऑन ये डेवलप्ड कंट्रीज के भी कुछ हिस्सों में पहुंचा, अमेरिका के भी कुछ हिस्सों में पहुंचा, जो होमलेस पॉपुलेशन को डेवलप करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचा, और जहां जहां भी इसको यूज किया गया वहां इसने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए। तो ये वो दौर था जब एविडेंस बेस्ड पॉलिसी जो थी वो मेडिकल साइंस से बाहर आकर दूसरे डेवलपिंग या इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सेक्शंस में उसने अपनी स्ट्रेंथ को, माइट को प्रूव किया और एक एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन बन गई। तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया उस वक्त ये यूएस में और यूके में एक प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड डिसिप्लिन की तरह पढ़ाया जा रहा था, और आज भी पढ़ाया जा रहा है।
उस समय जो थिंक टैंक्स थे या सेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे वो फुली फ्लेज डिपार्टमेंट्स या स्टडी सेंटर बन चुके हैं, और गवर्नमेंट्स काफ़ी रिलाई करती हैं उन इंस्टीट्यूशंस पे और उन थिंक टैंक्स पे अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। हमारे यहाँ इंडिया में अच्छा, इंडिया में आने से पहले मैं एक और एग्जांपल दूंगा। बाराक ओबामा ने जब प्रेसिडेंटशिप संभाली तो उन्होंने व्हाइट हाउस में एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया था। I know about it just because one of my teachers was the member of that task force, Professor Larry Eber. He was the professor of social interventions in the University of New York. और वो ओबामा की जो व्हाइट हाउस में जो टास्क फोर्स थी उसके मेंबर थे, और दोनों ही टर्म में इसने काफ़ी कुछ काम किया। और ओबामा की जो हेल्थ पॉलिसी थी, हेल्थ प्रोग्राम था, वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी इसका उनका योगदान रहा। लेकिन ट्रम्प जी ने जो है आते ही उस टास्क फोर्स को जो है डिसॉल्व कर दिया। एंड ही इवन अनाउंस्ड क्लियरली, वेरी क्लियरली, दैट आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस वर्ड एविडेंस बेस्ड, because whatever the decision is going out of this Oval Office, it is my decision, not anybody else's decision. And since evidence-based decision is a decision from science, not from the politician per se, so he was particularly offended by the science. तो उन्होंने उस टर्म को ही बैन कर दिया था, और तब से एविडेंस बेस्ड की एक तरह से कंज्यूमरशिप में काफी कमी आई थी। तो अच्छा, एक्चुअली रिपब्लिकन्स जो हैं वो दे बेसिकली डिटेस्ट एविडेंस बेस्ड अप्रोच। इसमें एक्चुअली एक चीज बताने लायक है कि कभी कभी जो इंटरवेंशंस होते हैं जिनको एविडेंस के सिंथेसिस के बिना इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है ये सोचकर कि वो फायदा पहुंचाएंगे, एक्चुअली दे डू हार्म देन गुड। तो ट्रम्प की आइडियोलॉजी की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, उनके ही एक स्टेट में एक ऐसा एक डिसीजन हुआ था जो कि बहुत मशहूर है। ऐसा इसको कहते हैं स्केयर्ड स्ट्रेट इंटरवेंशन। स्केयर्ड स्ट्रेट इंटरवेंशन जो है वो उन बच्चों के साथ यूज किया गया जो स्कूलों में बुलिंग करते हैं, मारपीट कर रहे हैं, जो कमजोर या पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ मारपीट करना, धमकाना, काइंड ऑफ। तो ये एक तरह से पेंडेमिक बन चुकी है। अब तो खैर कम हो गई है, लेकिन पिछले सालों में एक पेंडेमिक बन चुकी है अमेरिका में, और बुलिंग के लिए स्पेशल लॉज भी लाए गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए गए। उसी में एक प्रोग्राम रन किया गया जिसको स्केयर्ड स्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि एक स्टडी पब्लिश हुई थी उस जमाने में जिसमें ये कहा गया था कि जो बच्चे बुलिंग करते हैं, मारपीट करते हैं स्कूलों में, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम दे टर्न टू बिकम क्रिमिनल्स, हार्डकोर क्रिमिनल्स इन द फ्यूचर। इस तरह की कुछ केस स्टडीज वहां पब्लिश हुई थी। तो उस वक्त के रिपब्लिकन गवर्नर ने डिसाइड किया कि बच्चों को, जो बुलिंग के बच्चे हैं, जो कन्विक्टेड बुलीज हैं, उनको लिया जाए, उनको वैन्स वगैरह में बिठाया जाए और उनको जेलों की सैर कराई जाए, और उनको दिखाया जाए कि देखिए जो पहले बुली करते थे वो अब ये क्रिमिनल्स बन चुके हैं, तो आप भी अगर बुलिंग करते रहेंगे तो आप भी क्रिमिनल बन जाएंगे आगे जाकर। ये उनका डिसीजन था, और ये कोई एविडेंस बेस्ड डिसीजन नहीं था, ये इंट्यूशन बेस्ड डिसीजन था, आइडियोलॉजी बेस्ड, इंट्यूशन बेस्ड, बस जस्ट थ्योरी बेस्ड डिसीजन। दैट वाज अ वेरी काइंड ऑफ रॉ डिसीजन। और उसके बाद जब ये इंटरवेंशन रोल आउट किया गया, बहुत सारे बच्चों को जेलों की सैर कराई गई, वो बच्चे जो बुली किया करते थे, जो कन्विक्टेड बुलीज थे।
उनको जेलों की सैर कराई गई, लेकिन इस प्रोग्राम का कोई इम्पैक्ट इवेल्युएट नहीं किया गया। इस प्रोग्राम को रोल आउट किया गया और छोड़ दिया गया, कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन जब एविडेंस बेस्ड अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो एक एकेडमिशियन ने एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च की, जिसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। उन्होंने मेटा एनालिसिस करके ये पता लगाया कि एक्चुअली इस इंटरवेंशन ने फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि इस इंटरवेंशन ने नुकसान पहुंचाया। इस इंटरवेंशन को करने से क्रिमिनल्स की तादाद और ज्यादा बढ़ गई। एक्चुअली द चिल्ड्रन हु वर convicted bullies and they were taken to the jails so that they could get scared of the status of criminals, and they start detesting the activity of being bullies. They will stop being bullies. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट उन बच्चों ने उन क्रिमिनल्स को आइडोलाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा क्रिमिनल्स जो थे वो मैचो मैन थे, वो उनका रोब था, दबदबा था, लोग उनसे डरते थे। वो टैटूज बनाए हुए हैं, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की हुई है और लोग उनसे डर रहे हैं, वो मारपीट कर रहे हैं तो हावी हो रहे हैं। ये सब देखकर जेलों में जाकर जब बच्चों ने देखा तो उन्होंने उनका जज्बा और बढ़ गया, वो और जल्दी क्रिमिनल बन गए और बहुत ज्यादा तादाद में क्रिमिनल्स बन गए। तो एक्चुअली ये इंटरवेंशन जो था ये फेल हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हैसियत है। अगर यही इंटरवेंशन एविडेंस बेस्ड होता तो उसमें एक सोशो साइकोलॉजिकल एंगल ये लिया जाता कि क्या साइकोलॉजिकली वो बच्चों से इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एविडेंस बेस्ड अप्रोच में सारे ही एंगल्स को कंसीडर किया जाता है और कवर किया जाता है। तो जब ये पॉलिसी बनाई गई थी उस वक्त किसी ने इस बारे में नहीं सोचा, एंड दैट प्रूव्ड टू बी रॉन्ग। तो दिस फेल्ड इंटरवेंशन एक्चुअली प्रूव्स द स्ट्रेंथ एंड द रिक्वायरमेंट of evidence-based approach and while you are designing your interventions. तो इस तरह से बेसिकली ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच की धीरे धीरे इम्पोर्टेंस बढ़ती गई। इंडिया में प्रॉपरली एविडेंस बेस्ड अप्रोच को डिक्लेयर नहीं किया गया है कि हम गवर्नमेंट में यूज करेंगे, लेकिन मैंने 2013 में जब मेरी एक बार मुलाकात हुई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी प्रजापति तिवारी जी से, आई एम कंफ्यूजिंग इन हिज सरनेम, हिज नेम वाज ईदर तिवारी और त्रिपाठी। तो आई हैपन टू मीट हिम एंड टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टूल है जिसको PMES कहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एजेस में आता है, और ये सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और उसको एनहांसमेंट करने में भी काम करता है। तो PMES ने उस समय ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ था कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, अगर वो अपने डिसीजंस को एविडेंस बेस्ड बनाते हैं किसी भी चैनल से, तो उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको स्पेशल प्राइज दिया जाएगा। लेकिन तब से आज तक किसी को भी उस तरह का कोई इंसेंटिव मिला नहीं है। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए कोई अवार्ड मिला हो या उसका कोई रिकॉग्निशन हुआ हो। उसकी वजह यह है कि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नेंस ये अपने आप में एक मुहिम है। इसके लिए एक पूरा माइंडसेट की जरूरत है, इसमें एक पूरे पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है कि आप
फैसले कैसे लेते हैं, आप प्रोग्राम्स कैसे डिवाइस करते हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेट का अपर हैंड होगा या साइंटिस्ट का अपर हैंड होगा। ये सारे इश्यूज जो हैं इतने इम्पोर्टेंट हैं, और इसकी वजह से जनरल पब्लिक, अच्छा अगर एविडेंस बेस्ड अप्रोच होगी तो जो कॉमन मासेस हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, क्लियर इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो रियलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, रीजंस मैंने बताए। इसमें कुछ सिस्टमैटिक इश्यूज भी शामिल हो सकते हैं जिस पर हमारी कोई पकड़ नहीं है, और कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट में एक मेजर इम्प्रूवमेंट ये देखने को मिला है कि इसकी जो अप्रोच है वो थोड़ी ओपन हुई है। इसने थिंक टैंक आइडियाज को जो है, थिंक टैंक बेस्ड आइडियाज को इनवाइट करना शुरू कर दिया है। पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन होता था, वो अपने वो एक ऐसा प्रोग्राम था जो काफी एयर टाइट प्रोग्राम था। उसमें किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन, किसी तरह का कोई कोई आउटर इन्वॉल्वमेंट शामिल नहीं था। जो भी, इट वाज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड कुछ मेंबर्स होते थे जो सब डिसाइड करते थे पॉलिसी क्या होगी। लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको नीति आयोग बनाया गया, और नीति आयोग ज्यादा एफिशिएंट है, और ये थिंक टैंक सिस्टम्स को कंसिडर कर रहा है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके अपनी पॉलिसी मेकिंग को ज्यादा इम्प्रूव किया है इन्होंने। लेकिन क्या वो फुली एविडेंस बेस्ड है, इसके बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता। हाँ, ये तो तथ्य है कि कुछ ऐसी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो एविडेंस बेस्ड हुए बिना चल नहीं पाएंगे। जैसे सबसे पहले हेल्थ, और हेल्थ को बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। बिना प्रॉपर रिसर्च किए और एविडेंस बेस्ड रिसर्च किए वो अपनी प्रैक्टिसेस को और अपनी प्रिसीजन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इन इन एनी गाइज और इन एनी लेवल, अंडर एनी लेवल और बिलो, गवर्नमेंट्स नोज दे आर गोइंग एविडेंस बेस्ड। दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, इसको तो हर हालत में एविडेंस बेस्ड होना जरूरी है, क्योंकि फूड और दूसरे प्रोडक्शंस जो हैं वो क्रिटिकल लेवल पर चलते हैं, और इसमें कोई भी डिसीजन की छोटी सी गलती जो है बड़ा नुकसान कर सकती है। इसलिए इसका एविडेंस बेस्ड होना जरूरी है, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग बाय द एविडेंस रादर देन बाय देयर ओन इंट्यूशन, आइडियोलॉजी और ओल्ड प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये साबित करती हैं कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। और डॉक्टर मैंने दाऊद, जी आप जो बताए अभी तक, तो हम लोग काफी कुछ समझे इस चीज को, और ये तो हम लोग डे टू डे लाइफ में फील कर रहे हैं कि जो भी डिसीजंस मेकर्स हैं उनका डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्कनेक्टेड है सोसाइटी से और नीड से। और ये जो वर्ल्ड वाइड डिसीजंस जो हो रहे हैं वो हमको प्रॉफिटियरिंग के तरफ ले जा रहा है। मतलब जो प्रॉफिटियरिंग बेस्ड डिसीजंस हो रहे हैं कि, और वो अल्टीमेटली प्रॉफिटियरिंग तभी हो सकता है जब हम नेचर को डिस्ट्रॉय करें और अभाव क्रिएट करें, उससे भाव बढ़ेगा, और भाव बढ़ेगा तो प्रॉफिटियरिंग क्लियरिटी से होगा, थोड़े ही से काम करने से उनका ये बढ़ेगा, और अल्टीमेटली पॉलिसिंग और इसी चीज में जा रहा है। तो प्रॉब्लम हम मतलब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम एक ये कर रहे हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड सब लोग फेस कर रहे हैं, कि पानी को गंदा करना। पानी, जबकि हमारे सभी रिलीजन में पानी को गंदा नहीं करो, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश्ड
रिलीजियसली ये है, एक पैराडाइम है। और उसको हम लोग ये वर्ल्ड को, नेचर को कॉलोनाइज करने के लिए कॉर्पोरेट्स का फॉर्मेशन जब हुआ तो सबसे पहला ऑनस्लॉट हुआ इसी के ऊपर, और पानी को बिजनेस बनाया गया, और पानी को स्टिंकिंग डिकेड्स बोलते हैं ब्रिटेन में, जबकि वहां के थेम्स नदी को गंदा किया गया। अब नाउ हम अभी के लिए हम ये बोल रहे हैं कि अभी हम इस चीज को, कि पॉसिबल है, बहुत आसान चीज सब पॉसिबल है, लेकिन उस तरफ डायरेक्शन के तरफ पॉलिसी मेकर्स जाने ही नहीं दे रहे हैं चीज को, कि हम कैसे उसको, वाटर को हम पॉल्यूशन को ये करें, प्रिवेंट करें। तो उस चीज के लिए हमने ट्राई किया। इवन जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उन लोगों को भी डिस्कस करके, और जो यूएस बेस्ड और भी रिसर्चर्स जो हैं, तो सब लोग इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमको अपने पानी को बाथरूम में गंदा करना है और उसको सीवेज बनाना है, टॉयलेट को है, और उसको मिला करके सीवेज बनाना है, और सीवेज का फिर बिजनेस क्रिएट करना है, और उससे फिर नदी को गंदा करना है या वाटर बॉडीज को गंदा करना है। तो प्रॉब्लम को मतलब रिसाइकलिंग जो 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 घर में हो सकता है, किचन का पानी किचन में रिसाइकिल हो सकता है, बाथरूम का पानी बाथरूम में रिसाइकिल हो सकता है, और हाइजीनिक कलेक्शन ऑफ नाइट सॉइल जो पहले पहले मैनुअल हो सकता था, उसका मशीन बेस्ड हो सकता है, उसको नहीं होने दिया जा रहा है डेलिबरेटली। तो ये इस चीज में हम लोग कैसे बढ़े, और एविडेंस बेस्ड चीज सब उसको उस लेवल तक कैसे ले जाए। आप जैसे इंडिया से ही संभव है ये चीज। इंडिया में सभी रिलीजन इक्वली इम्पोर्टेंट है, और सब लोगों के इसमें पानी को गंदा नहीं करना, और को एक महत्व दिया गया है। और उसी में हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसका जो मैंडेटेड है वो कि टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, वो प्रिवेंशन की चर्चा ही नहीं करता है, क्योंकि कंट्रोल करने में पैसा बनता है। तो पूरे जगह पर हम लोग इस चीज को कैसे आगे बढ़ाएं। आपका चूंकि इस फील्ड में काम किया हुआ है, आप इतना दूर तक नीति आयोग और इन लोगों से जुड़े हैं, मेरा प्रयास हो रहा है। और हम जैसे अभी जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनके पास तक इस बात को जाने से वो हमसे ही पूछ रहे हैं कि आप लेकर के आइए, मॉडल बना करके ले आइए। तो ये मॉडल बनाना और ये करना नीति आयोग के तरफ से, और ये इंस्टीट्यूशंस IITs हैं, वो लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वो उनका जो मोटो ही है गाइडेड बाय बिजनेस का मतलब प्रॉफिटियरिंग और बिजनेस को बढ़ावा देना, उसमें मोटो है। IITs का वही मोटो है, अगर इंडिया ये लेते हैं तो। और इसके चलते हमारी सारी नदियां बर्बाद हो रही है, और उस चीज को लेकर के मैं उद्वेलित हूँ, परेशान हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे से जगह से अपना एविडेंस को हम क्रिएट करें, लेकिन मुझे दिक्कत हो रही है। तो इस सब चीज के लिए आप लोग कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, पूरे चीज को, आपका अनुभव जो है, और जो देश विदेश आप घूमे हैं इस चीज को लेकर के, तो उसमें कैसे हम लोग ज्वाइंटली कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग आप अभी भी बता सकते हैं तो बताइए, और आगे हम लोग कैसे जुड़े इसके लिए बात कीजिएगा। थैंक यू। मेरे ख्याल से झा साहब ने एक बहुत ही अहम मुद्दा बताया है, अहम प्रॉब्लम बताया है कि उसके लिए कैसे जुड़ना चाहिए। पानी इज द बेसिक नीड of every human being for survival. Okay, not only water, लेकिन खाना पीना और जो पैक्ड फूड है वो भी। लेकिन इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और टॉपिक है, एक और एरिया है, नॉट टॉपिक, और वो है एजुकेशन। एजुकेशन को प्रोग्रेस रेलेवेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि अब जो एजुकेशन है वो आउटडेटेड हो चुकी है, बिकॉज दैट इज ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड। टुडे विद गूगल, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन तो चुटकियों में मिल जाती है। सो नाउ वी डोंट नीड टू लर्न व्हाट, बट वी नीड टू लर्न हाउ एंड व्हाई। तो हमारी एजुकेशन को हाउ एंड व्हाई बेस्ड कैसे बनाया जाए, क्या इसमें भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च हेल्प कर सकता है क्या?
ये दो मुद्दे। ब्रिज कुमार जी, ब्रिज किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऑफ टू थैंक यू। यू जी, मीना जी, thank you very much for bringing forward the issue of or the matter of evidence-based approach to be applied in education. देखिए, evidence-based education, evidence-based teaching, evidence-based dissemination of knowledge, हाँ, ये भी अपने आप में एक मेजर ब्रांच है एविडेंस बेस्ड अप्रोच की पॉलिसी की। अच्छा। और ब्रिज जी की जो बात थी उस पे अभी हमने रिसेंटली थोड़ा सा काम भी किया है कि वाटर बॉडी कंजर्वेशन। तो लेकिन चूंकि पहले उन्होंने अपना सवाल किया था तो मैं जरा सा हल्का सा इनपुट पहले उनकी बात पर दूं, फिर प्लीज एविडेंस प्लीज प्लीज या प्लीज, डेफिनेटली। हाँ, तो देखिए, ब्रिज जी की जो बात थी उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि पोल्यूशन का जो मोड है वो, हाँ, और दूसरी ये कि उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। यानी उन्होंने बिजनेस इन डिजास्टर की बात कर दी है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी मामला है। मैंने अभी अपने बातचीत में कहा कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच के इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा, एक बात कह दूं, एक स्वीपिंग कमेंट दे दूं, एविडेंस बेस्ड अप्रोच applies to almost all walks of life. राइट। सारे ही गवर्नेंस के डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का हो, वाटर सैनिटेशन का हो, हेल्थ का हो, इन सब में एविडेंस बेस्ड अप्रोच अप्लाई करती है, बिकॉज इट इज नॉट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसिप्लिन, इट्स ए मेथोडोलॉजी दैट अप्लाइज टू ऑल डिसिप्लिन। राइट। तो हाँ, ये तो एक तरह से वो विमान है जिसपे चढ़ के आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, यूएसए भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री जा सकते हैं, काइंड ऑफ। तो हम्म। तो मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ अभी कि जो पोल्यूशन है, देखिए, जो ह्यूमन स्क्रीटा है, जिसको आप कह रहे हैं कि वो जो बनता है, पोल्यूटेड वाटर बनता है, ह्यूमन स्क्रीटा किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज में ही जाता है। राइट। चाहे वो चाहे वो हमारे ग्राउंड से सीपेज के जरिए वाटर टेबल तक पहुंचे, या डायरेक्ट रिवर्स में चला जाए, या पॉन्ड्स में जाए। ह्यूमन स्क्रीटा इज नॉट द थ्रेट टू इन्वायरमेंट, बिकॉज ह्यूमन और इन्वायरमेंट जो है वो सदियों से एक दूसरे के साथ रहते चले आए। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे हमारे खान पान में इतना ज्यादा केमिकल शामिल हो गए हैं, और स्पेशली सबसे बड़ा खतरा है एंटीबायोटिक्स। बॉडी में एंटीबायोटिक्स में जो भी कोई मेडिसिन हम खाते हैं वो 5% ही उनका जो है वो मेटाबॉलिज्म होता है। बाकी राइट। 95% वो हमारे स्क्रीटा से बाहर आते हैं, रिवर बॉडी में जाते हैं। अच्छा, उससे खतरा ये होता है कि वो एंटीबायोटिक जब वाटर बॉडीज में पहुंचते हैं तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, जी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन मेडिसिन के कांटेक्ट में आने के बाद उनके अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। यानी कि आज जो एंटीबायोटिक मुझे बीमारी से बचाएगी, वही एंटीबायोटिक कल फेल हो जाएगी। सही बात। अच्छा, बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा स्मार्ट हैं ह्यूमंस के मुकाबले। आपको पता होना चाहिए, साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। दे आर फास्टर इन एवोल्यूशन, दे आर फास्टर इन डेवलपिंग स्ट्रेंथ अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। राइट। जितनी इतनी तेजी से हम नए एंटीबायोटिक्स नहीं खोज पाते हैं, जितनी तेजी से बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं। तो इवॉल्व हो जाती। इसकी वजह से एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस नामी एक खतरा पैदा हो गया है, और आने वाले दिनों में ये होगा कि सारे एंटीबायोटिक जो है वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस बात का बड़ा डर है
कि जो आम तौर पे नजला, जुकाम, फ्लू जैसी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, इससे लोग मर जाया करेंगे।